Hello everyone. So today I will discuss about the three-state buffer. So first topic is what three-state buffer, and second topic is what how we have to construct a bus system with the help of our three-state buffer. So आज इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे, थ्री स्टेट बफर क्या होता है आपका और बस सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे आप थ्री स्टेट बफर यूज करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, व्हाट इज द थ्री स्टेट बफर. तो थ्री स्टेट बफर इज व्हाट. तो थ्री स्टेट बफर बेसिकली यूज टू कंस्ट्रक्ट अ बस सिस्टम. जब भी आपको बस सिस्टम बनाना होगा यू हैव टू यूज द थ्री स्टेट बफर, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द डायग्राम ऑफ द थ्री स्टेट बफर, diagram of the three state buffer, there are two input. First input is what, normal input. आप डायग्राम में देख सकते हो. फर्स्ट इनपुट इज व्हाट, नॉर्मल इनपुट, एंड सेकेंड इनपुट इज व्हाट, कंट्रोल इनपुट. ध्यान रखना, देयर आर टू इनपुट इन केस ऑफ द थ्री स्टेट बफर. वन इज व्हाट, नॉर्मल इनपुट, एंड सेकेंड इज व्हाट, कंट्रोल इनपुट, राइट. एंड नॉर्मल इनपुट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड विद द ए, और यू कैन से ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, एंड सो ऑन, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द कंट्रोल इनपुट इज रिप्रेजेंटेड विद द सी, and there are one output, that is the output y. So this is the simple diagram of what three state buffer. और basically यूज क्यों करते हो, टू कंस्ट्रक्ट अ बस सिस्टम. ध्यान रखना. if we talk about the second point, a three state buffer or you can see the tri state buffer is an what integrated circuit, that is the IC, that connect multiple data source. That is the very important, that connect the multiple data source to a single bus line, right. That connect a multiple data source to a single bus line. This is a very important. Or first point is what, three state buffer basically used to construct a bus system. Now come to the diagram. If we talk about the normal input and control input, right, and output y. So what is the output of the three state buffer? So first case is what, in case of the three state buffer, right, output y equal to a, output y equal to a when control input is what, 1. This is very important. In case of the three state buffer, output is what, a, y equal to a when c is what, 1. means आपका आउटपुट a होगा when कंट्रोल इनपुट इज व्हाट, 1. मीन्स आपकी c इज व्हाट, c की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगा. अगर c इज 1 एट दैट टाइम आउटपुट ऑफ द थ्री स्टेट बफर इज व्हाट, एज ए नॉर्मल इनपुट विच इज a. ध्यान रखना, अगर कंट्रोल इनपुट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी, तो थ्री स्टेट बफर का जो आपका आउटपुट होगा क्या होगा आपका, a होगा. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द आउटपुट, राइट. सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, if c is what, c is what, 0. if we talk about the control input is what, 0, that is the represented with the c. at that time what about the output, output show the high impedance. This is very important. output of three state buffer is what, show the high impedance when condition is what, c, that is your control input is what, 0. दैट मीन्स क्या होगा आपका, जो कंट्रोल इनपुट की वैल्यू अगर 0 हो रही है एट दैट टाइम थ्री स्टेट का जो आउटपुट का बिहेवियर होगा क्या होगा आपका, हाई इम्पिडेंस. हाई इम्पिडेंस मीन्स इज व्हाट, सर्किट बिहेव एज ए ओपन सर्किट. ध्यान रखना, सर्किट बिहेव एज ए ओपन सर्किट. दैट मीन्स देयर इज नो आउटपुट एट दैट टाइम. मीन्स सर्किट बिहेव एज व्हाट, ओपन सर्किट, राइट. दैट मीन्स सर्किट इज व्हाट, डिसकनेक्टेड. सिंपल वे में बोल सकते हो. High impedance means circuit behave as what, open circuit, right. Circuit behave as what, open circuit. Wait for a minute. Wait for a minute. Right, means output is what, y equal to show the high impedance when input, control input is what, c equal to 1. that is your very important, right. So there are two output in case of the what, three state buffer. First is what, y equal to a when c is what, control input is what, 1,
and y equal to it show the high impedance, it show the high impedance when control input is what, 0. This is your very important, तो ध्यान रखना. So this is the working of what, 3 state buffer, right? I think concept यहाँ तक clear होगा आपका. Come to the next topic. Second topic is what, you have to design or you can say the construct a bus line. You have to design or construct a bus line with the help of what, 3 state buffer, right? How you have to design? So first of all you have to use the 3 state buffer along with the what, decoder. You have to use the decoder circuit for that. मीन्स डिकोडर सर्किट यूज करोगे आप, और क्या यूज करोगे आप, 3 स्टेट बफर सर्किट यूज करोगे. ये सारी क्या है आपकी 3 स्टेट बफर सर्किट है, ध्यान रखना. राइट. तो बस लाइन विद द 3 स्टेट बफर. तो देयर आर 2 कंपोनेंट. फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, डिकोडर, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट, 3 स्टेट बफर, राइट? दैट इज द ट्राई स्टेट बफर. आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ तक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द व्हाट इज द डिकोडर एंड व्हाट इज द 3 स्टेट बफर. If we talk about the decoder, right? Decoder is what? It have 2 input, that is the S0 and S1. There are 4 output and size of the decoder is what, 2x4, right? आपका इस डिकोडर के साइज के आपका 2x4 साइज है, राइट? एंड यहाँ पे आपने क्या लगा रखे हैं, देयर आर 4 ट्राई स्टेट बफर. फर्स्ट सेकेंड, आपका फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ. ध्यान रखना. तो वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ डिकोडर, राइट? व्हाट इज द डिकोडर? क्वेश्चन क्या आएगा आपका, डिकोडर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिकोडर, राइट? अगर सिंपल वे में बात करें, एक लाइन में बात करें, डिकोडर क्या होता है आपका. If we talk about the decoder, right? Decoder is what? That is the what? It is the part of the what? It is the part of the what? Combinational logic circuit. Very important. Combinational logic circuit, right? It is the part of the what? Combinational logic, right? So decoder is what? That is the one example of the combinational logic circuit. Combinational logic circuit is what? That means present output depend on the present input. ध्यान रखना. In case of the combinational logic circuit, present output depend on the present input. ध्यान रखना. जो आपका present output होगा किस पे डिपेंड करेगा, आपका present input पे डिपेंड करेगा. That circuit is called the combinational logic circuit. Second point in case of the decoder is what? Second point क्या होगा आपका डिकोडर का? That means standard size of the decoder is what? n cross 2 to power n. ध्यान रखना. दिस इज योर स्टैंडर्ड साइज, n क्रॉस 2 to power n. ध्यान रखना. n इज वॉट, नंबर ऑफ इनपुट, एंड 2 to power n इज वॉट, नंबर ऑफ आउटपुट. ये क्या है आपका आउटपुट है, एंड दिस इज वॉट इनपुट. ध्यान रखना. दिस इज वॉट इनपुट. सो डिकोडर सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. ध्यान रखना. इन डिकोडर सर्किट इज वॉट ऑल्सो कॉल्ड द what, it have the multiple input and multiple output combinational logic circuit. ध्यान रखना. that means it have multiple input, ध्यान रखना, and multiple output. सिंपल सा कहने का मतलब इसमें multiple input होगा और multiple output होगा. ध्यान रखना. आई थिंक 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके. डिकोडर इज वॉट, पार्ट ऑफ द वॉट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, और यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज वॉट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट. If we talk about the standard size of the decoder is what, there are n cross 2 to power n. Means if n is what, 1, if n is what 1 or you can say 2 or 3, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने 2 ले रखा है, राइट? तो 2 लिखो, क्या लिखोगे आप 2, तो क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2 to power 2, दैट मीन्स 2 क्रॉस 4. इफ n is 3, तो 3 क्रॉस 2 to power 3, दैट इज द 3 क्रॉस 8. दिस इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ द वॉट डिकोडर. ध्यान रखना. If we talk about the point regarding the decoder circuit, a decoder is what? A decoder is a circuit that change a code into a set of signal, ध्यान रखना.
ए डिकोडर इज व्हाट, दैट इज द वन टाइप ऑफ द सर्किट दैट डिकोड द डेटा, राइट। जो भी आपका इनपुट पे डेटा आएगा उसको क्या करेगा, डिकोड कर देगा, ध्यान रखना। और डिकोडर इज सर्किट दैट चेंज द कोड इनटू अ सेट ऑफ सिग्नल, जो भी आपके कोड आएगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सेट ऑफ सिग्नल, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा, सेट ऑफ सिग्नल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट कन्वर्ट व्हाट एनालॉग सिग्नल इनटू व्हाट डिजिटल डेटा, ध्यान रखना। डिकोडर बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट अ एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल डेटा। If we talk about the next point, a decoder is what, multiple input, already बता चुका हूँ। a decoder is what, multiple input and multiple output combinational logic circuit, ध्यान रखना। this is very very important, and this is your diagram of the decoder, there are n input and 2 to power n output, ध्यान रखना। and this is the circuit of what, decoder, and this is your enable line, if e equal to what, 1, enable line equal to 1, एट दैट टाइम डिकोडर क्या करेगा, आपका वर्क करेगा, राइट। डिकोडर वर्क द, या डिकोडर क्या करेगा, आपका वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा। इफ ई इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम डिकोडर इज व्हाट, इन एक्टिव स्टेज, राइट, ध्यान रखना। डिसेबल, राइट, डिकोडर एक्ट इज व्हाट, डिसेबल, ध्यान रखना। इफ ई इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्या होगा, आपका डिकोडर इनेबल हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिकोडर सर्किट, ठीक है। If we talk about the simple normal example of the 2x4 decoder, right, 2x4 that means there are 2 input and 4 output, ध्यान रखना। अगर 2x4 लिखा है तो फर्स्ट वाला क्या होगा आपका, there are, this is the input and 4 is what, that is your output, right। अब देखो डायग्राम की बात करें, we talk about the diagram, A and B is what, input, right, that is the 2 input and there are 4 output, D0, D2, D3, D4, there are 4 आउटपुट, और हमने सॉल्व क्या कर रखा है, D0, D1, D2, D3, ध्यान रखना, दैट इज योर आउटपुट। तो सिंपल अगर साइज की बात करें, 3x8 डिकोडर की बात करें, दैट मीन्स देयर आर 3 इनपुट एंड 8 आउटपुट, ध्यान रखना। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, इनपुट क्या हो जाएगा, A B C एंड आउटपुट इज व्हाट, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। अब इसमें मेन फीचर इज व्हाट, इसमें मेन फीचर इज व्हाट, इन केस ऑफ द डिकोडर सर्किट, राइट, देयर आर 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट, D0, D1, D2, D3। अब देखना है कैसे वर्क कर रहा है सर्किट आपका। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रूथ टेबल ऑफ द डिकोडर, ये क्या आपका ट्रूथ टेबल है, किसका, डिकोडर का, ट्रूथ टेबल ऑफ डिकोडर कैसे वर्क करेगा आपका। देयर आर 2 इनपुट A and B, there are 2 input A and B and there are 4 output of the decoder, D0, D1, D2, D3, right। If talk about the input A and B, the number of input is what, 2, the possible combination is what, 4, that is the 0 0 0 1 1 0 1 1, right। Put the value of input A equal to and B equal to 0 0 and you have to check the output। If we talk about the A and B is what, both 0, at that time क्या होगा आपका, D0 इज व्हाट, एक्टिव, D0 क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके, इनएक्टिव हो जाएंगे, ध्यान रखना। D0 जो आपका आउटपुट होगा क्या होगा आपका, एक्टिव होगा, ध्यान रखना, दैट मीन्स ऑन होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके, ऑफ हो जाएंगे, राइट, ध्यान रखना, मीन्स डिसकनेक्ट हो जाएंगे। क्या करेगा आपका आउटपुट क्या होगा आपका, डिसेबल होगा, ध्यान रखना। ओनली वन आउटपुट एक्टिव इन केस ऑफ द डिकोडर सर्किट, व्हेन input is what, 0 0 at that time D0 is active, when input is what, 0 1 at that time D1 is active, other are inactive. If the input is what, 1 0 at that time D2 is active and other input is what, inactive. In case of the A equal to 1 B equal to 1 at that time D3 is active। for example जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, if A equal to 1 and B equal to 1, right, at that time D3 is active, ध्यान रखना, at that time D3 is active, D3 is what, active, and other are what, inactive, and D3 is what, active। so in case of the decoder output क्या होगा, only one active at a time, right। तो if we talk about this diagram, if we talk about this table, right, अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में है क्या आपका,
input is what 0 0 at that time only D naught is active, other are what inactive. Other क्या है आपके inactive है, right? In case of the 0 1 only D1 is active, other what 0. In case of the 1 0 only D2 is what active. In case of the 1 1 only D3 is active, right? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका, क्या रिजल्ट निकल रहा है? रिजल्ट इज व्हाट, आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इट मीन्स आपका at a time only one output is what active at a time in case of the what decoder circuit. So this is your basic points regarding the decoder circuit. Come to the final diagram of the three state buffer, right? How you have to construct a bus line with the help of our three state buffer. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट्स है रिगार्डिंग द थ्री स्टेट बफर. अब देखो आपको वर्किंग पता चल गया, डिकोडर इज व्हाट एंड ट्राई स्टेट बफर के बारे में आपको पता हो गया एंड डिकोडर के बारे में पता हो गया. अब वर्किंग इसकी बताओ कैसे वर्क करेगा, हाउ इट वर्क द सर्किट. सपोज वी टॉक अबाउट द इनपुट इज व्हाट 0 0, इनपुट इज व्हाट 0 एंड आउटपुट सॉरी इनपुट S0 and S0 and S1 is 0 0. At that time what about the output? Output Y0 is what active, output Y0 is what active and other are inactive, that means 0 0. When input is what 0 0 means S0 and S1 is what 0 0. हमने पुटअप किया 0 0. Check the output of the decoder, right? देखो 2 cross 4 that means 2 input and 4 output. Output is Y0, Y1, Y2, Y3. When input S0 S1 is 0 0 at that time Y0 is active. That means आपका जो डिकोडर का इनपुट होगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक मिनट वेट करो, यहाँ से देखते हैं. मीन्स इफ Y0 इज एक्टिव तो Y0 किससे कनेक्टेड है आपका, दैट इज योर कंट्रोल इनपुट ऑफ द व्हाट, कंट्रोल इनपुट ऑफ थ्री स्टेट बफर. दिस इज योर कंट्रोल इनपुट C और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी. तो C इक्वल टू क्या आपका 1 है एंड नॉर्मल इनपुट इज व्हाट A0. तो व्हाट अबाउट द आउटपुट, व्हाट अबाउट द आउटपुट, आउटपुट इज व्हाट नथिंग बट द A0 बिकॉज ऑफ when control input is what 1, control input is what 1, at that time output y equal to क्या होगा आपका, जो फर्स्ट ट्राई स्टेट बफर का जो आउटपुट होगा क्या होगा, y equal to A0 होगा. ध्यान रखना. बाकी रिमेनिंग की बात करें भी टॉक अबाउट दिस 0, तो दिस इज योर 0, दिस इज योर 0 0. व्हेन कंट्रोल इनपुट इज व्हाट 0, कंट्रोल इनपुट इज व्हाट 0, at that time circuit behave as a open circuit or you can say the circuit behave as a high impedance, right? Output of the थ्री स्टेट बफर एक्ट एज ए हाई इम्पिडेंस. तो ध्यान रखना. तो ये तीनों क्या करेंगे आपके, वर्क नहीं करेगा, ये भी आपका वर्क नहीं करेगा, ये भी आपका वर्क नहीं करेगा, ये भी आपका मीन्स ट्राई स्टेट बफर 2 3 4 क्या करेंगे आपके, वर्क नहीं करेगा. वर्क कौन करेगा, केवल फर्स्ट वाला. तो आउटपुट कहाँ से आएगा आपका, ओनली A0 आ जाएगा. ध्यान रखना. आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. चेक द सेकेंड स्टेज, राइट. सेकेंड स्टेज क्या होगा आपका, व्हेन इनपुट S0 एंड S1 इज व्हाट 0 1, मीन्स आपका जो S0 S1 0 1 होगा तो कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा आपका, आउटपुट कौन सा एक्टिव होगा आपका. अगर S0 आपका S0 हो गया, S1 हो गया, राइट. 0 0 है, 0 1 आ गया आपका, राइट. तो यहाँ पे S0 की वैल्यू क्या आपकी 1 है और S0 S1 के आपका 0 है. तो 0 1 के केस में क्या होगा आपका, ओनली दिस इज एक्टिव, राइट. बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके, इनएक्टिव होगा. ध्यान रखना. बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके, इनएक्टिव हो जाएगा आपको. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट कहाँ से आएगा आपका, तो क्या एक्टिव होगा आपका, यहाँ पे C इक्वल टू क्या आपका आ गया 1 आ गया. बाकी रिमेनिंग क्या है आपके, इफ C इक्वल टू 1 तो ट्राई स्टेट 2 क्या होगा आपका, एक्टिव हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से B0 आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा. बाकी आउटपुट कहाँ से नहीं आएगा आपका, जहाँ पे भी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी. मीन्स फर्स्ट केस में 0 है,
थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ केस में क्या है आपका 0 0, मीन्स यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो 0 होगा। तो ये सर्किट क्या होगी आपकी, वर्क नहीं करेगी। बाकी वर्क कौन सा करेगा, व्हेन कंट्रोल इनपुट C इक्वल टू 1 होगा तभी सर्किट आपका वर्क होगा। तो जो आपका B नॉट होगा क्या होगा आपका, वर्क करेगा। तो B नॉट क्या होगा आपका, आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स आउटपुट ऑफ दिस ट्राई स्टेट बफर इज व्हाट, B नॉट। अदर आउटपुट ऑफ द 3 स्टेट बफर इज व्हाट, इट्स ऑफ द हाई इम्पिडेंस। मीन्स यहाँ से भी क्या होगा आपका, हाई इम्पिडेंस आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा आपका, हाई इम्पिडेंस आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा आपका, हाई इम्पिडेंस आएगा। दैट मीन्स देयर इज नो आउटपुट, राइट। ठीक है, उसी तरह आपका लास्ट केस ले लेता हूँ मैं रैंडम। अगर आपका 1 1 होगा तो क्या शो ऑफ होगा आपका, अगर आपका 1 1 होगा तो क्या आउटपुट आएगा आपका। यस, इफ यू टॉक अबाउट द S0 एंड S1 इज 1 1 एट दैट टाइम, आउटपुट ऑफ डिकोडर इज व्हाट, Y3 इज एक्टिव। Y3 क्या होगा आपका, एक्टिव होगा। बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके, इनएक्टिव होगा। दैट मीन्स आउटपुट क्या दिखेगा यहाँ पे, C इक्वल टू 0 होगा, आउटपुट Y0 0 होगा, Y1 0 होगा, Y2 0 होगा एंड Y3 इज व्हाट 1। तो देखो यहाँ पे C की जो वैल्यू होगी इन केस ऑफ द व्हाट 3 स्टेट बफर, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी 0 जा रहा है आपका इनपुट, यहाँ भी 0 जा रहा है C कंट्रोल इनपुट। तो देखो आउटपुट कहाँ पे एक्टिव होगा आपका, जो 4 आउटपुट आपका है किसका, ट्राई स्टेट बफर का। तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या आपका 1 है। तो क्या होगा आपका, व्हेन कंट्रोल इनपुट ऑफ द ट्राई स्टेट बफर 4 इज व्हाट 1, एट दैट टाइम आउटपुट क्या होगा आपका, जो भी आपका नॉर्मल इनपुट होगा, दैट मीन्स इसका इनपुट क्या आपका D नॉट है, तो D नॉट क्या होगा आपका आउटपुट पे दिखेगा। ठीक है, तो D नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके, इनएक्टिव होगा, मीन्स देयर इज नो आउटपुट। एक्टिव कौन सा होगा, ओनली D नॉट। मीन्स आपका जो 4 ट्राई स्टेट होगा वही क्या होगा आपका एक्टिव होगा, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। सो दिस इज द बस लाइन विद द 3 स्टेट बफर सर्किट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देख लेते कुछ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स। फर्स्ट का कंट्रोल 0 एट दैट टाइम आउटपुट नॉर्मल दिस ट्राई स्टेट बफर नॉर्मल सिंपल मतलब होगा, जब भी कंट्रोल इनपुट ऑफ ट्राई स्टेट बफर तो आउटपुट दैट इज नॉर्मल आउटपुट, मींस आपका एक क्या हो जाएगा सिंपल मतलब एक की वैल्यू पर आपकी 0 है तो आउटपुट क्या 0 है, एक की वैल्यू क्या है तो आउटपुट क्या आएगा 1। सेकंड क्या आपका व्हेन at that time so the high impedance this is very important और the that is so same one when control input 1 आपका control input क्या होगा at that time output equal to normal one at output equal to normal input control input 0 at that time output show the high impedance at that time output show the high impedance. This is very important. Impedance is open circuit. It have a very open circuit. So this is all about the system buffer.